IPS ऑफिसर्स जो हैं वो यहाँ पे नागपुर में पोस्टिंग लेने से थोड़ा सा कतराते हैं, थोड़ी हेजिटेशन रहती है उनके मन में। जब आपको वापस भेजा गया नागपुर में, तो क्या आपके मन में कुछ शंका थी? का इंटेलिजेंस नेटवर्क सबसे इफेक्टिव रहा, तो इसका ब्लूप्रिंट आपने कैसे तैयार किया? चाहे मैं गांजे की बात करूं, एमडी की बात करूं, तो ये सारे पदार्थ बड़े इजीली अवेलेबल हैं। बहुत सारे यंगस्टर्स जो 18 से 24 साल की उम्र के बीच में हैं, इनमें वो कंजम्पशन बढ़ गया है। हेट क्राइम्स की बात करें, सोशल मीडिया पे बड़ा रैम्पेंट है। अगर आप कड़ी एडवाइस देना चाहेंगे कि इसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं? लेकिन अगर वो कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ के साथ आया तो उसको कोई बचा नहीं सकता। द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम विथ इट्स फुल फोर्स वर्क करेगी, पूरी रिसोर्सेज वर्क करेगी। चाहे वो राजू बद्रे हो, चाहे वो रंजीत सफेलकर हो, या फिर संतोष आंबेकर हो, तो इन पे नकेल कसने के लिए क्या प्लानिंग की? क्रिमिनल चाहे तो अंदर रहेगा या ऐसी कार्रवाई होगी तो उसको याद रखेगा। Good morning everyone. Today marks a momentous occasion. Why? Because today we are starting with our series of podcasts Jamming with Journo. आज के एपिसोड में जो हमारे गेस्ट हैं वो कोई इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। वो है एक नो नॉनसेंस मैन, नागपुर के सिंगम और वेरी स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर श्री अमितेश कुमार। Of Jamming with Journo, I was waiting for this moment from a very long time. मैं चाहता था कि आप आएँ मेरे शो पे और पहला एपिसोड मैं आपके साथ शूट करूँ, क्योंकि मैं जब से एसोसिएटेड हूँ आपके गाइडेंस के अंडर और नागपुर पुलिस से, तो मैं बहुत महत्व देता हूँ। I am a very huge fan of yours. So, sir, Thank you so much. It's indeed a privilege to be on your first show, and I must tell you, a couple of years back, maybe a year or two back, when I first roped you in as one of our social media influencers to run our campaign for various issues of public interest. You really coordinated very well with all your colleagues, and we had a good, a large number of social media influencers who partnered with Nagpur City Police, and we really thank you for taking that initiative. Thank you, sir. Thank you so much. सर, मेरे लिए आपकी जर्नी बहुत इंस्पिरेशनल, मतलब मैं जितना आपको देखा हूँ, मेरे रोल मॉडल मैं अगर बोलूँ तो कुछ रोल मॉडल में से आप सबसे ऊपर पेडिस्टल पे हैं। तो सर, एक स्टूडेंट से एक सन और फिर वो IPS बनने का जज्बा, वो कहाँ से, मतलब उस सफ़र के बारे में बताइए। आई एम बेसिकली फ्रॉम पटना, एंड मैंने अपना इनिशियल जो एजुकेशन था वो पटना से किया। My father was also a civil servant. He was in the state administrative service in Bihar, and he was always interacting with the officers from the police and in the administration. And as a small kid, I was really inspired with the officers with whom he was interacting with, and with him himself, who was doing a lot of hard work. And I realized that it's all so much relevant to the society. And that's when, as a young boy, I always had an inspiration that I should become a civil servant. And particularly, I was very inspired with the uniform, and that's how I had a special inclination for the police service. And more importantly, बिहार में ऐसी एक परंपरा रही है कि सिविल सर्विसेज की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रहा है। एंड इनफैक्ट एक समय था जब UPSC में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कैंडिडेट्स बिहार से ही हुआ करते थे। इन दैट जर्नी माय फादर डिसाइडेड कि आपको अगर अच्छी एवेन्यूज चाहिए तो आपको दिल्ली जाना चाहिए। एंड आई शिफ्टेड इनफैक्ट इन क्लास 10th in a boarding school, which is the Delhi Public School, R.K. Puram, and it was a very, very good change in the sense that Patna ka education, and suddenly you go to Delhi and you're staying in a boarding, interacting with a variety of people, both colleagues as well as faculty members. It was a
great stay in the EPS in my school, which is the DPS Artpuram, Delhi. And वहाँ से इनफैक्ट टू बी फ्रैंक जब मैं 10th में गया Delhi, probably took me time to adjust, and I did not fare very well in my class 10th exams. But I then for the class 12th, I actually geared myself up, and I did really well in class 12th. And finally, I got admission in the St. Stephen's College, Delhi University, which is one of the most prestigious colleges. And that at that time, in fact, today also it is. But at that time, it was really an achievement to get through the St. Stephen's College. And वहाँ पे again, St. Stephen's was like a factory for the civil services and for the UPSC. And every year when the results used to come out, we had umpteen number of candidates qualifying for the civil services. So it was in fact a launching pad to prepare myself for the civil services. And I had a very, very good exposure in the college when I was good both in academics as well as extracurricular activities. At one point of time, I was the uh, chief coordinator of the college festival, which is the Harmony, very, very prestigious festival of Delhi. I was also for some time the secretary of the Shakespeare Society. I was a member of the Bridge Association, and there were a lot of activities which I was indulging in. And along with that, I was paying equal attention to academics. And I was, in fact, God has been kind that I managed to get through the civil services in my first attempt at an age of 20, less than 23 years. The results had come and I had qualified for the police service. Frankly, see the in the services, the first choice is all obviously the IAS, and the second is mostly IPS. Some people choose the foreign service. I had preferred IPS over the foreign service, and I got through in the first attempt, and that's how my journey started. And I would actually thank my parents who were a great source of motivation. I mean, every day, even if not in words, their eyes would be saying that you have to work hard to get through the civil services. And he was in the state administrative service, and he always desired that his son should be a part of the elite services of the country. And I was indeed lucky to have got through, and the inspiration was, I would say, number one was my father, and obviously coupled with my mother. It was he who gave all this opportunity to me to send me to Delhi, and it was not a very easy job sending a young boy to Delhi, both in terms of the emotional connection as well as the financial implications. But he sacrificed quite a bit to get me the best education, the best of, the culture, and my commitment to work hard to get through the civil services basically emanates from him. And I was in fact very lucky. The allotment of the cadre in the services is totally, it used to be as good as a lottery. I was really lucky to have got the Maharashtra cadre where I started my journey since 1998. जर्नी तो आपकी सर बड़ी धमाकेदार रही है। हमने जितना स्टडी किया है आपके पूरे करियर के बारे में, तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता चली। नागपुर के अब तक के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग आप सीपी रहे, कमिश्नर ऑफ पुलिस रहे। तो ये नागपुर से कोई स्पेशल कनेक्शन है, या फिर एक महज इत्तेफाक, या फिर आपको फोर्स किया गया कि नागपुर में आप रहे? नहीं, ये कोई फोर्स तो करने का कोई प्रश्न नहीं है। ये इट इज़ जस्ट कि एक इत्तेफाक है कि मैं यहाँ 3.5 साल रहा। इनफैक्ट फ्रैंकली ब्यूरोक्रेसी में ऐसा कोई नॉर्मल टेन्योर 2 साल का रहता है, बट ऐसा कोई बंधन नहीं है कि कोई 2 साल ही रहेगा। It is basically the prerogative of the government. As long as you are doing okay work, good work, they can continue you, or they can choose to remove you earlier as well. So it's basically the prerogative of the government, and that has been so. Nagpur mein, I will again say that I've been fortunate to have got this opportunity to be in Nagpur, because certainly Nagpur is a very, very big city. It's the winter capital. There are a lot of activities on
front of political movement, issues of VIP security, traffic management, and of course our bread and butter is crime prevention and control of law and order. Uh, it has been a very satisfying journey in Nagpur. Frankly, मैं नागपुर में पहले भी रह चुका हूँ as DCP. I had served for 2 years here, where I was holding dual charge of DCP Zone 2 as well as DCP Traffic for all those 2-year tenure. And I had developed a special liking because the city is developed, you have all facilities here, and you have so much to work on. The people are very nice, they respect the good work of the police, and at the same time, they bring to your attention if there are any issues of concern which needs to be rectified. I must say that the constabulary, Nagpur City has a constabulary strength of more than 8,000. And I would say that as a DCP, I had seen them and I had worked with them, and I saw their commitment in doing their jobs professionally and to the best of their abilities. And as when I came here as CP, I had already done commissionerates. I'd been police commissioners in 2 cities earlier. Amravati, I was there for approximately 3 years. Aurangabad City, I was there for 2 years. So I came to Nagpur with experience of urban policing, and having worked in Nagpur earlier, I knew the city pretty well. And I must say that we have attempted to work with utmost professionalism, transparency, and commitment and hard work. Try and redress the grievances of the people. I would not make any tall claims that I've been able to discipline the whole city, but I would certainly say that we have tried to create a space in the minds of the people so that they have a bit of respect for us. They have to respect not an individual but the institution as a whole, and more importantly the rule of law. That's what we have tried to bring about in the city. And I must say that the political leadership and all other stakeholders have been extremely supportive. The political leadership have been providing us guidance, support, helped us solve tricky issues. There have been issues of communal nature or other issues where you need support of the public at large, you need support of the political leadership, you need support of the community leaders, you need support from the common public. And that's been so forthcoming in Nagpur that I would say that God has been kind that I've been able to be in the city for 3.5 years, and I can say that it's been a very satisfying journey in Nagpur. Especially at times when I came here, I would just recall an incident. I came here to Nagpur on 4th of September 2020, and I took charge in the forenoon, and in the evening we had 4 deaths of our constabulary due to COVID. The next day we saw 5 of our people dying of COVID. That's approximately in 2 days of my first 2 days of my tenure. We had 9 of our constabulary losing their lives to COVID, and it was an extremely. The morale of the force was in fact. People were not confident. Where we had a job of enforcing the lockdown very strictly. We were supposed to be on the street. We were supposed to be guarding the hospital so that there's no attack on that. We had to be at hospitals, we had to be at crematoriums, we had to be on the streets doing nakabandi, and 9 of our people dying in 2 days. That's where I would still recall that on the second day of my tenure, on the 5th of September 2020, I went on air. I went on the wireless set, and I instructed my senior PIs and other officers that our utmost priority at the moment is to ensure that we do not have any constable dying due to lack of medical attention or due to improper advice or any laxity in detection of the incident. We requested the hospitals that we are in a very tough situation and you have to give us priority
to provide medical attention to our people. I would say that the hospitals cooperated so much. In fact, it was it was almost like a walk-in for us. If we had a constable who needed medical attention, we would get beds immediately. There were some hospitals I would recall who used to put a couple of extra beds to accommodate our patients. And I must say that this peak of 9 people dying in 2 days, we were immediately able to arrest that trend. Parallelly, we decided that, in fact, I noticed that it was basically lack of medical attention, lack of medical facilities, which were leading to deaths of our policemen. We immediately decided that we'll have a police hospital. We started a 16-bedded police hospital, totally oxygenated, and even with the slightest symptom, we used to get our constables as a buffer in that police hospital. And then, if required, they went to bigger hospitals. But I must say that those initial days, 9 people dying in 2 days, and total COVID deaths later on, total has been around 18 or 20, if I'm not wrong. And especially on the 17th of September, when we inaugurated the police hospital, there were just a couple of 1 or 2 deaths later on, to people who had a lot of comorbidities. So that was a challenge when I entered Nagpur. That was a challenge to ensure that the morale of the police force is high. At the same time, there was a fear. Everyone had a fear that he himself should not get COVID. The family members should not get. But I recall moving around in areas on a large scale, standing for hours at the Variety Chowk, at Law College Square, at Katol Naka, Mahal, Itwari, just trying to enforce the lockdown and to give confidence to our people that the police leadership was there with them on the streets to do the job which the government mandates us to do. And that was a time where initial challenges were COVID, and then Nagpur, you all would know that has always been criticized for being very high in instances of crime. We were able to arrest that trend, and with the hard work of everyone, there was a sharp decline in instances of murders, which have been the most, which is the aspect for which the Nagpur City Police has been most criticized for. We were able to arrest that trend, and overall, there would be no communal instances as such. Here and there, stray instances were immediately handled. So it has indeed been very, very satisfying, both as a leader of the police force, which has a very, very high, apart from the constabulary, even the senior formations of the level of DCP, that is CP, Joint CP, we have 14 officers of SP rank and above working under me. The whole team worked so well and so efficiently that we were able to, I would repeat, we were able to create a space in the minds of people for us. सर कोविड में बहुत इम्पेशेंट दिखा, लोगों के अंदर रेजिस्टेंस भी बहुत था. हमने देखा कि यहाँ पे जो कोविड हॉटबेड्स एरियाज थी, तो वहाँ पे काफ़ी सारे चैलेंजेस निकल के आ रहे थे. तो वो उसको कैसे कंट्रोल किया गया? बिकॉज दैट वाज द टाइम व्हेन यू टुक चार्ज फ्रॉम द प्रीवियस कमिश्नर. सो हाउ चैलेंजिंग वाज इट? It was very challenging because if you recall, when for example Bombay and other parts of the country had very high instances of COVID, and it was at its peak, the lockdown was actually in the true sense. It was basically till June, July, August 2020, and that was the time when Nagpur did not have a very high rate of COVID infection. It was when the lockdown started getting relaxed a bit, the flights had started, that COVID actually came to its peak in mid-August onwards, and September onwards it was very bad till around November. So, when the lockdown was there in the true sense, where there were no flights, the trains had almost like stopped except for these special trains for labourers, etc. People were there was a fear in the minds of the people, and they were voluntarily not coming out. The offices were shut. This August, September onwards, things were opening up. And it was becoming a fact of life that we have to coexist with COVID in terms of following the COVID protocols, yet do our economic activity, yet do our work, yet do our job. And that is why the phase of September onwards till around November 2020, and then again from February, March 2021 onwards for a couple of months, it was really very, very bad, and we had a tough time. So
we had to enforce lockdowns, basically restricted to the city area. The other parts of the state was open, but we had to have stricter guidelines for the city, and that's why the challenge was more. We had to be on the streets on a large scale. We had to protect the other stakeholders who was working on their COVID duties, medical, paramedic staff, the municipal authorities, and a lot of other agencies which were working. And the main key feature was we had to be present on the streets to show to the people, to give them a sense of confidence that we are trying to implement what the government mandates us to do. There were issues of oxygen, shortage of oxygen. You had to man the oxygen units. The transportation of oxygen had to be protected. So there were umpteen number of issues going on, and I must say that police in general everywhere, and I would especially commend each one of the Nagpur City police. A lot of them lost, around more than 20 of them lost their lives. There were a lot of family members who also lost their lives, and I would certainly say that the fact that we were exposed to so much of contact with other people, that we ourselves could be a source of infection to the family members. And despite those challenges at the personal level, each one of us stood tall, and we tried to enforce the guidelines in the best possible manner. And I'm sure this effort of Nagpur City Police was recognized by one and all at that point. डेफिनेटली सर नागपुर को जहां हमने देखा गया ये बड़ी पॉलिटिकल सेंसिटिव सिटी है, जैसे आपने पहले भी जिक्र किया, पर हमने एक और चीज़ जैसे हमें पढ़ने में आती है कि आईपीएस ऑफिसर्स जो हैं वो यहाँ पे नागपुर में पोस्टिंग लेने से थोड़ा सा कतराते हैं, थोड़ी हेजिटेशन रहती है उनके मन में। पर आपके टेन्योर को देख के हमें ऐसा कोई नहीं लगता। जब आपको वापस भेजा गया नागपुर में, तो क्या आपके मन में कुछ शंका थी इस बात को लेके कि वापस नागपुर क्यों? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, मैं ऑन अ इंडिविजुअल पर्सनल नोट आई वुड से दैट आई वर्कड इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र. I have been in. I started my tenure as a ASP in Buldana. I then went to Bombay. I again came out of Bombay, and I was SP of Dhule. I was SP of Yavatmal, SP of Solapur Rural, SP of Aurangabad Rural. These are all various parts of the state. I have been in Bombay in 3 tenures, but I've never, stuck to one city as a whole. I've always liked moving around in the city, and I love all the cities of Maharashtra, but frankly, I don't want to get bogged down by just one city. So I love moving around. I move with my family. My parents stay with me, and my family stays with me. So we move wherever we are sent, and we happily work there. We pack our bags once we are transferred and go to the next city. सर, आपके पूरे टेन्योर में, आपके कार्यकाल में हमने देखा है कि आपका इंटेलिजेंस नेटवर्क सबसे इफेक्टिव रहा। तो इसका ब्लूप्रिंट आपने कैसे तैयार किया? क्या स्टेप्स लेने पड़े आपको ये इंटेलिजेंस नेटवर्क बिल्ड करने में, चाहे उसको वो इन्फ्लुएंसर्स को ओपन करना हो या फिर हमारे सोर्सेस को स्ट्रेंथन करना हो, हमारे डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथन करना हो, इसको लेकर? देखिए, बहुत ज़रूरी है कि शहर के हर कोने में क्या चल रहा है, चाहे वो क्रिमिनल की एक्टिविटी हो या वो अच्छे लोगों की कोई न्यूसेंस हो जिसके वजह से वो एजिटेटेड हैं, ये जब तक बात प्रशासन के पास पहुंचेगी नहीं, पुलिस के पास पहुंचेगी नहीं, तो कोई भी करेक्टिव स्टेप्स लेना संभव नहीं होता। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इस पूरे इंटेलिजेंस नेटवर्क का जो स्कीम है, उसमें मैं हमेशा जनता को मानता हूँ कि जब तक अधिकारी का कनेक्ट जनता के साथ नहीं होगा, पब्लिक के साथ नहीं होगा, सभी स्टेक होल्डर्स के साथ नहीं होगा, तो एक बहुत ही स्क्यूड इंफॉर्मेशन पुलिस के पास आ सकता है। लेकिन हमारी जो या यंत्रणा है और हमारे पास जो इंफॉर्मेशन की जो साधने हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको हम बहुत ही ऑप्टिमम तरीके से यूज़ करना और उन रिसोर्सेज को डिप्लॉय करना बहुत आवश्यक होता है। और उस तहत हमारी
जो स्पेशल ब्रांच है, हमारे पुलिस स्टेशन में कॉन्फिडेंशियल कांस्टेबल्स हैं, इन सबों की को सेंसिटाइज करना कि ये इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, उस इंफॉर्मेशन को आप को असेसमेंट प्रॉपर होना चाहिए और फिर एक एंटिसिपेशन होना चाहिए कि उसकी क्या परिणाम लॉ एंड ऑर्डर या क्राइम पे हो सकती है। इसके लिए हमने अलग अलग अपने इंटेलिजेंस यूनिट, जैसे हमने नार्को इंटेलिजेंस यूनिट ड्रग्स के विरुद्ध एक स्पेशल बनाई थी, हमने इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए एक स्पेशल यूनिट्स बनाई थी, हमने क्राइम प्रिवेंशन के लिए क्रिमिनल इंटेलिजेंस यूनिट हर जोन्स में और हर क्राइम ब्रांच के हर यूनिट्स में बनाई थी। ये काफ़ी अच्छी तरह काम कर रहे थे। लेकिन साथ साथ मैं जैसा बोलूँगा, पब्लिक से कनेक्ट के लिए हमारी ये हमेशा एक प्रयास रहती है कि मैं अपना मोबाइल नंबर लोगों को दूं। इनफैक्ट जब मैं आई स्टिल रिमेंबर कि जब मैं फर्स्ट वीक में ही आया था तो मैं ओपनली प्रेस में आई हैड गिवन माई मोबाइल नंबर कि सभी के पास हमारी मोबाइल नंबर होना चाहिए। मैं अटेम्प्ट करता हूं कि ये मोबाइल मैं खुद हैंडल करूं, इनफैक्ट मैं खुद ही हैंडल करता हूं। कभी भी ऐसा मोबाइल किसी और के पास रहेगा या कॉल्स को हम रिप्लाई नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता। आई ट्राई टू अटेंड मोस्ट ऑफ द कॉल्स। आजकल ये व्हाट्सएप के उसमें कभी कभी कॉल्स आते हैं, मैं मीटिंग में रहता हूँ, मैं बोलता हूँ कि आप हमको डिटेल व्हाट्सएप से मैसेज कर दीजिए एंड उसको हम चाहते हैं कि देखिए इंफॉर्मेशन पब्लिक देती है, फ़ोन करती है, अगर उस पर रिस्पॉन्स नहीं होगा तो पीपल लूज फेथ। तो माई एंडेवर, जो हमारा प्रयत्न रहता है कि कॉल अगर किसी को कोई एजिटेट इशू कर रहा है तो उस पर रिस्पॉन्स होना चाहिए। एक बात आपको सभी को ध्यान रखना पड़ेगा कि सभी कंप्लेंट्स जो आते हैं या सभी ग्रीवांसेस जो होते हैं उसको लीगल मैंडेट के तहत रिजॉल्व करना कभी कभी संभव नहीं भी होता, लेकिन प्रयत्न परिणामकारक होना चाहिए। और ये जो प्रयत्न है वो जो 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 अग्रीव्ड पर्सन है उसको ये कॉन्फिडेंस है, उसको एक सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए कि उसने ये तकरार करी, उसने ये कंप्लेंट करी एंड एटलीस्ट द पुलिस अटेम्प्टेड टू डू समथिंग। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड देन इट जनरेट्स, उससे वो एक इफेक्ट आता है। एक जनरली जब मैसेज पब्लिक में पर्कुलेट होता है कि पुलिस को या पुलिस ऑफिसर को फ़ोन करने पे या इंफॉर्मेशन देने पे एक्शन होता है, तो एक वो इंफॉर्मेशन की एक नेटवर्क बन जाती है और बहुत पैरेलल इंफॉर्मेशन आपके पास आने लगती है। तो कभी कभी जो हमारी यंत्रणा जो हमको इंफॉर्मेशन दे रही है वो कभी कभी क्रॉस वेरीफाई हो जाती है पब्लिक के साथ। अगर कहीं कुछ इशू हो रहा है तो कभी कभी ऐसा होता है कि कंट्रोल रूम को इन्फॉर्मेशन मिले कि कहीं कुछ इशू हुआ है या कहीं कोई लॉ एंड ऑर्डर हुआ है, उसके पहले डायरेक्टली हमारे पास फ़ोन आ जाता है या हमारे पास व्हाट्सएप मैसेजेस आ जाते हैं। तो एक कनेक्ट पब्लिक के साथ जो होता है वही एक हमारे इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस के लिए एक बहुत बड़ा और प्राइम सोर्स है। नए नए साधन, नए नए टेक्नोलॉजी का यूज, जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स में रियलाइज़ किया कि यहाँ पे कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनकी रीच पब्लिक के पास लाखों में है। आई मीन लार्ज नंबर ऑफ फॉलोअर्स दे हैव। सो ऑब्वियसली इस प्रकार के इन्फ्लुएंसर्स जब कुछ पोस्ट करेंगे तो उसका बहुत वाइड उसका इम्पैक्ट होता है। इसलिए हमने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को रोक इन किया, उनको रोप इन किया हमने अपनी डिजिटल कैंपेन चलाने के लिए। ड्रग्स का इशू हो, विमेन सेफ्टी का इशू हो, ट्रैफिक के वॉलंटरी कंप्लाइंग रूल्स एंड रेगुलेशंस के इश्यूज हो, उसके लिए हमने उनको रोप इन किया। बट साथ साथ जो इम्पोर्टेंट वो था कि उनके साथ जो हमारा कनेक्ट हुआ, उनको जब वो इंडिविजुअल डीएम्स मैसेजेस आते थे, इंस्टाग्राम पे हो, फेसबुक पे हो, दे यूज्ड टू पास इट ऑन टू अस। एंड जब हमारा रिस्पॉन्स होता था, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मोटरसाइकिल पे साइलेंसर हटा के कोई रास्ते पे बच्चे धूम कर रहे हैं, कभी कभी किसी और को पता नहीं चले, वो हमारे पास किसी इन्फ्लुएंसर का वो वीडियो आता था। वी यूज्ड टू ट्रेस दोज वायलेटर्स, उनको पकड़ते थे, उनके पेरेंट्स गार्जियंस को काउंसलिंग करते थे। एक इम्पैक्ट होता है। और जैसा मैं बोला, कोई भी जो पुलिस की जो ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जब तक सभी स्टेक होल्डर्स के साथ एक कनेक्ट नहीं बनेगा, पब्लिक आम जनता के साथ जब तक कनेक्ट नहीं बनेगा, जो अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स हैं अलग अलग जगह पे, उनके साथ अगर कनेक्ट नहीं बनेगा, प्रेस वालों के साथ, जर्नलिस्ट के साथ अगर कनेक्ट नहीं बनेगा, तो आइसोलेशन में काम करने पे एक आदमी, वन कैन बी इन अ फूल्स पैराडाइज दैट इज बीइंग डूइंग वेरी वेल, बट फाइनली जो हम काम कर रहे हैं उससे पब्लिक की ग्रीवांसेस रिड्रेस होनी चाहिए, कि उनको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर वो पुलिस स्टेशन में आ रहे हैं तो उनकी सुनवाई होगी,
वो चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो पॉलिटिकली कनेक्टेड हो, चाहे वो पॉलिटिकली नहीं कनेक्टेड हो, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी समाज का हो, महिला हो, सीनियर सिटीजन हो, बच्चे हो, कोई भी हो, इफ दे गो टू अ पुलिस स्टेशन दे शुड हैव द कॉन्फिडेंस दैट दे कैन वॉक इन एनी टाइम और उनकी सुनवाई होगी, पुलिस कार्रवाई करेगी। और अगर पुलिस स्टेशन में हमारा एक प्रयत्न रहा है कि पुलिस स्टेशन हमारी फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, वो इमीडिएटली एक्ट करे। कभी कभी कुछ कारणों से अगर उनका समाधान नहीं होता है पुलिस स्टेशन के एक्शन पे, तो वो सीनियर ऑफिसर्स और हमें लोग बताते हैं, हमारे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे या कॉल्स आते हैं और हम उनको रिड्रेस करने की कोशिश करते हैं। दैट इज़ द मेन सोर्स ऑफ इंटेलिजेंस टू माई माइंड। एंड आई थिंक अगर कोई एक आप हमारी एक्शन जिससे the tenure has been satisfying, I would say, जो पुलिस को जो पब्लिक को मोबाइल नंबर शेयर करके और पब्लिक को अलग अलग पब्लिक से अलग अलग माध्यम से फिजिकली मीटिंग्स लेकर के या फिजिकली रास्ते पे उतर करके जो एक कनेक्ट स्टैब्लिश होता है, आई थिंक वो एक सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सेटिस्फैक्शन का या सक्सेस का मैं अगर बोलूँगा तो इट इज़ दैट। सर, पुलिस यंत्रणा तो बहुत अग्रेसिवली काम करती है, पर जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया पे भी हमने एक ऐसा फॉर्मुलेट स्ट्रैटेजी की थी कि जो भी इन्फॉर्मेशन इन्फ्लुएंसर्स तक आ रही है वो डायरेक्टली आपको पास ऑन, मतलब आपने वो एक ब्रिज बना दिया था। तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स डायरेक्टली आप तक के कनेक्ट करके वो कहीं पे भी कुछ घटना हो रही है तो आप तक के पहुंचाते थे। तो क्या ये इरिटेटिंग हो जाता था कभी कभी कि यार मतलब इतना इन्फॉर्मेशन आ रही है, मेरे भी डिपार्टमेंट से आ रही है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी आप भेज रहे हैं, और इसके साथ साथ क्या ये आम जनता में जो उपद्रव करने की मंशा रखता है उनमें डर पैदा कर पाया? ज़रूर, मैं ये बोलूँगा, देखिए हमारा तो ये जॉब है, सी पुलिसिंग इज़ अ 24 आवर जॉब। पुलिसिंग में ऐसा नहीं है कि आप 6 बजे के बाद ऑफिस बंद हो गई और आप अवेलेबल नहीं है। पुलिस की इनफैक्ट मेन हमारा आई वुड से कि अर्बन पुलिसिंग में जो की टाइम है पुलिसिंग का, जहाँ जब क्राइम की इंसिडेंट्स होती है, लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज होते हैं, ट्रिकी इश्यूज होते हैं, वो प्राइमरली रात को 8-9 बजे से लेके 1-1:30 बजे रात तक होता है। सो दैट्स द टाइम जब आप आदमी अलर्ट रहता है, मैसेजेस देखते हैं क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। सो इट्स नॉट इरिटेटिंग एट ऑल, इन फैक्ट इट इज सेटिस्फाइंग एज अ at a individual level also. It is satisfying that there is so much information, इतनी information आ रही है आपके पास, लोगों की जो issues है, जो fact की इतनी issues आ रही है आपके पास। I don't take it as a reflection कि शहर में इतने issues, I take it as a reflection कि लोग आपसे connected एंड उसको रिजॉल्व करने की हमारी प्रयत्न रहती है। एंड आई वुड से कि रिजॉल्व करने के लिए सी वो हम कोई इंडिविजुअल रिजॉल्विंग एजेंसी नहीं है, इट इज़ ए इंस्टीट्यूशन। नागपुर सिटी पुलिस इज एन इंस्टीट्यूशन। हमारे पास 8,000 पुलिस कर्मचारी हैं, हमारे पास बीट मार्शल्स रहते हैं, हमारे पास पेट्रोलिंग मोबाइल्स रहती है, हर पुलिस स्टेशन में बहुत ही सीनियर और रिस्पॉन्सिबल सीनियर पीआईज रहते हैं, हमारे डीसीपीज हैं, एडिशनल सीपीज हैं, जॉइंट सीपीज हैं। We have a lot of resources at our hands. Just that कि information जब आती है, you have to pass it on. कहीं पे कोई ट्रैफिक ब्रांच को रिजॉल्व करना होता है, कहीं पे क्राइम ब्रांच को रिजॉल्व करना होता है, कहीं पे हमारी स्पेशल यूनिट्स है, एंटी नार्कोटिक सेल है, भरोसा सेल है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन प्रिवेंशन के लिए दामिनी पथक्स हैं, बीट मार्शल्स हमने बोला, मोटरसाइकिल्स पे 24 आवर्स पेट्रोलिंग के लिए लोग हैं। सो हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। जस्ट दैट इन्फॉर्मेशन आता है तो लोगों को वहाँ जाके रिस्पॉन्ड करना होता है, एंड रिस्पॉन्स हैज़ टू बी क्विक, टाइमली, इफेक्टिव। दैट्स द पॉइंट। सो जो कनेक्ट है जो पब्लिक के साथ वो है, आई थिंक आई वुड अगेन रिपीट दैट इट इज़ बीन अ की फैक्टर in my successful, I would say successful in inverted commas, because it's successful, which I believe that it has been successful, and for me it has been satisfying. Obviously I mean I would not like to ऐसी कुछ claim कि मैं ही बहुत बड़ा 30 मार का हूँ, ऐसा कोई भी क्लेम मैं करना नहीं चाहता हूँ। वो तो जनता डिसाइड करेगी और पब्लिक डिसाइड करेगी कि हम कितने इफेक्टिव रहे हैं। बट डेफिनेटली स्टेटिस्टिकली और ओवरऑल एक जो फील गुड फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं आई वुड रिपीट कि ये टीम एफर्ट था, ये कोई इंडिविजुअलिस्टिक एफर्ट नहीं रहता है, ये पूरी टीम को साथ काम करनी पड़ती है। और टीम मतलब हमारी पुलिस तो टीम है यूनिफॉर्म में, बट जैसा मैं बोला एवरीवन इज अ पुलिसमैन इन सिविल क्लोथ्स एज वेल। सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, सभी की ड्यूटीज़ है, सभी के राइट्स है। इट हैज़ बीन अ टीम एफर्ट।
एंड इसकी वजह से हमने कुछ जनता को, आम जनता को एक कॉन्फिडेंस दिलाया है कि पुलिस स्टेशन उनके लिए है, पुलिस विभाग उनके लिए है, और क्रिमिनल को पूरी तरीके से ख़त्म, और रूल ऑफ लॉ और कायदा का वचक, कायदा का डर लोगों तक जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उन पर रहना चाहिए, ये हमने किया। डेफिनेटली सर, लोगों में एक्सेप्टेंस भी बढ़ी है डिपार्टमेंट को लेके, और लोग हिचकिचाते तो हैं कुछ क्राइम करने से पहले, पर एक रिस्पेक्ट वैल्यू भी बढ़ी है पुलिस डिपार्टमेंट को लेके, क्योंकि वो ब्रिज एक कनेक्ट बना दिया गया है कि लोग कभी भी आके अपनी चीज़ें हम तक पहुंचा सकते हैं। हमने 2022 में भी देखा आपके टेन्योर में कि जो मर्डर रेट है वो मैसिवली मतलब हुए हैं, पर मैसिवली ड्रॉप डाउन देखा गया है। तो इसमें जितनी भी आपने बात की है उसमें तो हम लोग बिलीव करते ही हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, क्राइम्स की बात की जाए तो साइबर क्राइम का जो है, जो सिलसिला है, वो काफ़ी, साइबर क्राइम ने बहुत सोसाइटी में अपने पैर जमा चुके हैं। तो इस मेनेस से, इस साइबर क्राइम के जो श्राप से लड़ने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट ने क्या क्या तैयारी की? देखिए, साइबर क्राइम का बेसिक ये आप जानते हैं कि टेरिटोरियल जुरिडिक्शन नहीं होता है। क्रिमिनल्स डोंट नीड टू फिजिकली कम हियर। कोई क्रिमिनल, साइबर क्रिमिनल नागपुर आके ही साइबर क्राइम करेगा ऐसा नहीं होता है, which is different। जो बाकी ट्रेडिशनल क्राइम्स हैं, दी क्रिमिनल हैज़ टू बी इन द सिटी। ये टेरिटोरियल जुरिडिक्शन को साइबर क्राइम क्रिमिनल्स क्रॉस करते हैं। दैट इज़ वाई थोड़ा सा चैलेंज साइबर क्राइम को डिटेक्ट करना और साइबर क्राइम को प्रिवेंट करना थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है, बिकॉज इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, इसमें इंटरमीडिएरीज हैं, इसमें सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, सबकी हेल्प लगती है। इसलिए साइबर क्राइम और इसमें क्रिमिनल्स को जो इकोनॉमिक बेनिफिट है वो बहुत ज़्यादा है। दैट इज़ वाई इट विल बिकम अ चैलेंज फॉर अस। एंड आई वुड से कि इसमें जो हमने सबसे इम्पॉर्टेंट कुछ स्टेप्स उठाए हैं, नंबर 1 इज़ प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन के लिए अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं, बैंक्स हों, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हों, हमारे सोशल मीडिया पे कैंपेन रन करने का हो, हमारी जो कम्युनिटी इंटरेक्शन होती है उसमें लोगों को सतर्क करना हो। बेसिकली प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। लोग सतर्क रहेंगे, लोग प्रॉपर फायरवॉल्स यूज़ करेंगे, लोग अपने पासवर्ड को सिक्योर रखेंगे, और बेसिक कुछ अगर अलर्टनेस अगर दिखाएंगे तो आई एम श्योर they would not fall prey to cyber crime, and that's why the awareness campaign is very very important। and वो हमने काफ़ी स्ट्रेस किया है, राइट फ्रॉम स्कूल्स कॉलेजेस में जाके यंग बच्चों के साथ साथ अलग अलग कम्युनिटी इंटरेक्शन में हमने उसको बहुत महत्व दिया। उसके साथ साथ ज़रूर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिस्पाइट ऑल दीज स्टेप्स फॉर अवेयरनेस एंड अदर प्रिवेंटिव स्टेप्स, होता तो ही है क्राइम। इसलिए डिटेक्शन के लिए हमने जो हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग, हमारी जो रिसोर्सेज है उसको ऑप्टिमम यूज़ करने के लिए हमने अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए काफ़ी सारे स्टेप्स किए हैं। हमारे अपने एक नया साइबर पुलिस स्टेशन जो गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया था, उसको हमने शुरू किया। उसमें हमने ट्रेन स्टाफ लगाए, उसमें काफ़ी संख्या में हमने स्टाफ लगाए। हमने गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने काफ़ी बड़े लेवल पे जो साइबर सिक्योरिटी नेटवर्क के तहत, साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम के तहत बहुत सारे हमने नए सॉफ्टवेयर्स, हार्डवेयर्स प्रोवाइड किए, उनकी ऑप्टिमम यूज़ और उसमें हमारे लोगों की ट्रेनिंग सो दैट दे कैन यूज़ दोज रिसोर्सेज इफेक्टिवली। रोपिंग इन प्राइवेट एक्सपर्ट्स, जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं सिटी में जो अवेलेबल हैं, उनका यूज़ करना टू हेल्प अस टू कॉम्प्लीमेंट एंड सप्लीमेंट आवर एफर्ट्स इन डिटेक्शन ऑफ क्राइम। दैट इज़ we have done at a large scale and we have not shied away। अगर कोई क्रिमिनल दिल्ली में ट्रेस होता है कि दिल्ली से वो क्राइम कर रहा है, हमारी टीम जाती है और दिल्ली से उसको उठा के लाती है। Our teams have arrested people from as far as the north east, South India, Delhi, Jammu, Kashmir। So despite issues of territorial jurisdiction, our teams have been traveling और हमें काफ़ी सफलता मिली है। यू वुड सी एन अपवर्ड ट्रेंड जो डिटेक्शन का परसेंटेज है और रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी का, लॉस्ट प्रॉपर्टी का परसेंटेज है, दैट शोइंग एन इंक्रीज। एंड रिकवरी करने के साथ साथ हमने जो मैंडेटेड प्रोटोकॉल्स है उसको फॉलो करके हमारी अटेम्प्ट रही है कि हम वो पैसे, वो जो लोगों की जो
cheated amount है that should go back to the victim, और उसके लिए हमने बहुत क्विक प्रोसेस के लिए डेडिकेटेड टीम्स लगाए हैं. So it is certainly a matter of priority, and it's going to be a matter of priority in the days to come when we are aware of it. It's going to be a challenge, and that's why our own capacity building and our optimum use of resources is very, very important. which I'm trying. सर, हमने देखा है कि नागपुर के कुख्यात अपराधी या फिर जो अपराध करने की मंशा रखते हैं, या तो ये शांत हैं या तो सलाखों के अंदर हैं. आपने जो एक्शन लिया, चाहे वो राजू बद्रे हो, चाहे वो रंजीत सफेलकर हो या फिर संतोष आंबेकर हो, तो इन पे नकेल कसने के लिए क्या प्लानिंग की, और ये आप जो मंशा रखते हैं अपराध करने की, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ये सब जो आपने नाम बोला, ये सब क्रिमिनल्स, बहुत नोन क्रिमिनल्स थे. ये सब बहुत ही ब्लेटेंटली क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करते रहे हैं. हमारा जो अपने पुलिस फोर्स को हमारी मैंडेट बहुत क्लियर थी कि जो बड़े बड़े जो लोग, जो बड़े बड़े जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, जो जिसको छोटे क्रिमिनल जो नए जो इसमें पैर रखने की जो मंशा रख रहे हैं या प्रयत्न कर रहे हैं, तो एक डर होना चाहिए कि क्रिमिनल चाहे तो अंदर रहेगा या ऐसी कार्रवाई होगी कि उसको याद रखना पड़ेगा. इसलिए इस प्रकार के जो बड़े बड़े नॉन क्रिमिनल्स थे, उनको इमीडिएटली हमने MCOC हो या MPDA का डिटेंशन हो, और बहुत ही ड्रास्टिक लेवल पे इनके ऊपर एक्शन शुरू से ही स्टार्ट की गई थी. अम्बेकर का तो इनफैक्ट हमारे आने के पहले ही एक्शन शुरू हो चुका था. बट बाकी बहुत सारे क्रिमिनल जो मर्डर्स, कुछ तो ऐसे थे जो मर्डर्स किए 10 साल 15 साल पहले, एंड दे वर मूविंग स्कॉट फ्री. द आइडिया इज वेरी क्लियर कि क्रिमिनल, सबसे पहले जो टॉप रंग क्रिमिनल्स हैं, उनको इमीडिएटली उनकी एक्टिविटीज़ को निस्तानबुद्ध करना है. जो हमारी पुलिस स्टेशन में जो टॉप 20 क्रिमिनल्स की एक रिकॉर्ड होती है, उस रिकॉर्ड को अपडेट करके और उनके ऊपर इमीडिएट क्विक इफेक्टिव एक्शन, जिससे कि मैसेज सोसाइटी में बहुत क्लियर होना चाहिए कि देयर इज नो प्लेस फॉर क्राइम एंड क्रिमिनल्स इन द सोसाइटी. दैट वाज द आइडिया. एंड मैंने हमेशा ये बोला है कि हमें किसी इंडिविजुअल से कोई मतभेद नहीं है, लेकिन क्रिमिनल जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कर रहा है, उसके साथ ज़रूर मतभेद है. अगर वो सही मार्ग पे आना चाहता है, डेफिनेटली हम उसको सही मार्ग पे लाने के लिए पूरी तरीके से मदद करेंगे. लेकिन अगर वो कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ के साथ आया, तो उसको कोई बचा नहीं सकता. द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम विथ इट्स फुल फोर्स वर्क करेगी, पूरी रिसोर्सेज वर्क करेगी तो उसकी जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है उसको बंद करने के लिए. एंड डिटरेंस होना चाहिए कि अगर किसी ने क्राइम किया, किसी ने वायलेशन किया, और अगर पकड़ा गया या उसका एक्टिविटी नजर आया, पुलिस बहुत ही जोर के तरीके से काम करेगी. ये क्रिमिनल जो बॉडी ऑफेंसेस हो, जो मारामारी हो, मर्डर्स हो, गुंडागर्दी हो, एक्सटॉर्शन हो, ये एक बात हुआ. इलीगल एक्टिविटीज़ को मैं बहुत महत्व देना चाहूँगा. ऑनलाइन गैम्बलिंग हो, क्लब्स हो, सैंड की इलीगल ट्रांसपोर्ट हो, जानवर की इलीगल ट्रैफिकिंग और पिटाई हो. इस प्रकार के बहुत सारे जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं, जिससे बाकी क्रिमिनल्स को एक फंडिंग मिलता है, इन सब एक्टिविटीज़ को बंद करना हमारा एक प्रायोरिटी रहा है. एंड बेसिक, जैसा मैं बताया, रूल ऑफ लॉ शुड प्रिवेल. सर, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा इंसिडेंट है मैच फिक्सिंग को लेके, जिसमें वेस्ट इंडीज़ का क्रिकेटर मार्लन सैमुअल्स इन्वॉल्व. तो वो प्रोब आप ही ने शायद किया था, आप बहुत अहम हिस्सा हैं उसके. लोगों को इस बारे में बहुत कम नॉलेज है, उनको पता नहीं है कि ये प्रोब भी आपने करा था. तो इसके बारे में लोगों को आप कुछ बताइए. इंटरेस्टिंग फैक्ट. यस, इंटरेस्टिंग द फैक्चुअल ये है कि मैं जब DCP था 2005 से 7, उस समय BCA का सिविल लाइंस में BCA पे बहुत सारे मैचेस हुआ करते थे. इनफैक्ट मुझे काउंट भी नहीं है कि कितने वनडे इंटरनेशनल्स और कितने टेस्ट मैचेस का बंदोबस्त हमने किया होगा. मैंने भेजा था उनकी, रख दीजिए क्या वहाँ रख दो. बीच में आएगा, चले. कैजुअल इंटरव्यू था ये. आप पहले पानी दीजिए, वो ठंडी हो जाएगी चाय उनकी. सो उस समय एक इंडिया वेस्ट इंडीज का एक मैच चल रहा था, और उस समय कुछ इंटेलिजेंस आई थी कि कुछ शायद प्लेयर्स
कुछ अनवांटेड लोगों के साथ कम्युनिकेशन में हैं और हमने इमीडिएटली टेक्निकल इंटेलिजेंस गैदर करना शुरू किया था और ये डेफिनेटली नज़र में आया था कि मार्लन सैमुअल्स जो उस समय का वेस्ट इंडीज ऑलराउंडर था, वो उसकी एक्टिविटीज वाज इंडल्जिंग इन एक्टिविटीज व्हिच वाज अगेंस्ट द मैंडेटेड प्रोटोकॉल, द कोड ऑफ कंडक्ट, द कोड ऑफ एथिक्स जो बीसीसीआई ने और आईसीसी की जो ये कंडक्ट थी उसका वायलेशन था। और हमने ये सब एविडेंस आईसीसी को बीसीसीआई के थ्रू प्रोवाइड किया था। और उसके बाद आई वुड स्टिल रिकॉल कि जब हम उस समय वो 2006-07 का बात कर रहा हूँ जिस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उतनी ज़्यादा संख्या में नागपुर में नहीं हुआ करता था। और वन मॉर्निंग जब हम पुलिस जिमखाना में उस समय कुछ इस विषय पे मीटिंग ले रहे थे और जब मैं ऊपर से देखा तो वॉकर स्ट्रीट पे कम से कम 50 के संख्या में कैमराज और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उस समय, जिसमें कि ESPN स्पोर्ट्स, स्टार स्पोर्ट्स, बहुत सारे अलग अलग देश विदेश से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कॉरेस्पॉन्डेंट्स आए थे एंड दे वांटेड एन इंटरव्यू, बट वी वर टाइट क्लिप्ड। उस समय काफ़ी हमारी बहस होती थी कि आपको हमें अपडेट देना चाहिए और हमने प्रोफेशनलिज्म के उसमें कि हम इस समय रिवील नहीं कर सकते। उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ काफ़ी इंटरेक्शन होती थी, कुछ आई मीन इट वाज ऑब्वियसली प्लेजेंट बट नथिंग अनप्लेजेंट, बट येट एक देवर एफर्ट्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कि मैक्सिमम कुछ निकाल पाएँ। कुछ लोग हमारी जो कम्युनिकेशन कुछ इंटरसेप्ट हुई थी, बहुत लोग वो कम्युनिकेशन सुनना चाहते थे, बहुत लोग वो कम्युनिकेशन की कॉपी लेना चाहते थे, बट वी केप्ट इट अ सीक्रेट एंड स्टिल आई मीन इतने साल हो गए लेकिन वो कम्युनिकेशन आज भी हमारे पुलिस के रिकॉर्ड पे है, हमने उसको लीक नहीं होने दिया है। वो शायद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए बहुत ही इशू ऑफ इंटरेस्ट था, शायद TRP वगैरह में उनको काफ़ी फ़ायदा होता, बट वी डिड आवर जॉब प्रोफेशनली। एंड बाद में ऑफ कोर्स ICC की टीम और उनकी एंटी करप्शन यूनिट्स ने जो इंक्वायरी किया उसके बाद मार्लन सैमुअल्स को टेम्पररी बैन भी इंटरनेशनल क्रिकेट से लगा था। सर लोगों को पता है, मतलब आपके नाम के साथ में एक डर भी आता है लोगों में, मतलब वो बिचक जाते हैं, अरे कहीं फेस ना करना पड़े, कहीं फेस टू फेस ऑफ ना हो जाए, हम दूर ही रहें। तो क्या मार्लन सैमुअल्स ने वो असली रूप जो अमितेश कुमार का है वो देखा? देखिए, मैं कभी हमारा पर्सनल इंटरेक्शन तो मार्लन सैमुअल्स का हुआ नहीं, बिकॉज वी चोज नॉट टू क्वेश्चन हिम। जैसा मैं बताया कि प्राइमरली इमीडिएटली ऑफेंस रजिस्टर करना शायद वो लीगल उसमें पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमने वो रूट ही अलग चूज़ किया था। वी डिसाइडेड कि हम इसको ICC को, इनफैक्ट द CP दैट टाइम डिसाइडेड कि वो ICC को इन्फॉर्म करेंगे थ्रू द BCCI एंड ICC की जो एंटी करप्शन टीम है दैट वुड कंडक्ट इंक्वायरी। उन्होंने वो किया, उनको हमने सभी इंफॉर्मेशन, सभी एविडेंसेस प्रोवाइड किए, बेस्ड ऑन विच दे क्वेश्चन मार्लन सैमुअल्स एंड फाइनली दे टुक अ डिसीजन टू बैन। सर हेट क्राइम्स की बात करेंगे, सोशल मीडिया पे बड़ा रैम्पेंट है, वो बड़ा इजी कन्वीनियंट प्लेटफॉर्म है जहां लोग हेट फैला सकते हैं। तो इसे कंट्रोल करने में नागपुर पुलिस को क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, और एक अगर आप कड़ी एडवाइस देना चाहेंगे कि इसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं तो आप क्या कहेंगे? देखिए, हेट क्राइम्स का जो स्पेशली सोशल मीडिया पे वो होता है, उसका मैं सबसे बड़ा रोल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का मानूंगा। उन्होंने इस इशू पे काफ़ी सारा एक अवेयरनेस कैंपेन में हमें मदद किया है। हेलो, आइए। सो इनफैक्ट इस प्रकार के कोई ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट आते तो हमें इमीडिएटली पता चलता कि इस प्रकार के पोस्ट आने के बाद इमीडिएटली वी गेट इट पुट डाउन फ्रॉम दैट साइट, फ्रॉम दैट पोर्टल। उसके बाद हम ट्रैक करते, इसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने बहुत मदद किया है और हम ऑफेंस रजिस्टर करके वी टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। हम लोगों को हमेशा एडवाइस करते हैं कि देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ज़रूर है, बट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के साथ साथ उनको एक उसमें रेस्ट्रिक्शंस है, दे हैव टू फॉलो दैट। उनकी किसी की भी कोई भी पोस्ट जिससे किसी की सेंटिमेंट्स हर्ट हो या कोई क्राइम को या क्रिमिनल को बढ़ावा मिले, इस प्रकार की कोई भी एक्टिविटी करनी उचित नहीं है, ये बेकायदेशीर है। और इस प्रकार की कोई भी अगर बेजवाबदार और इलीगल एक्टिविटी सोशल मीडिया के माध्यम से करेगा
पुलिस के पास रिसोर्सेज है, पुलिस के पास एबिलिटी है टू ट्रेस एंड ट्रैक हिम, एंड हम बहुत ही कड़क भूमिका इस प्रकार के लोगों से के विरुद्ध लेते हैं। सर, ड्रग पेनिट्रेशन की बात करूंगा, यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा प्रीवेलेंट है। आजकल बड़ा इजीली एक्सेसिबल हो चुका है। चाहे अगर मैं गांजे की बात करूं, एमडी की बात करूं, तो ये सारे पदार्थ बड़े इजीली अवेलेबल हैं। और मैं वो एक सेक्शन की बात नहीं करूंगा कि यही लोग खरीद सकते हैं। बहुत सारे यंगस्टर्स जो 18 से 24 साल की उम्र के बीच में है, इनमें वो कंजम्पशन बढ़ गया है। तो नागपुर पुलिस के लिए और एक टॉप कॉप होते हो, आपके सामने क्या चैलेंज है कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? देखिए, नार्कोटिक्स कंट्रोल करना एक चैलेंज और प्रायोरिटी का इशू नागपुर पुलिस के लिए हमेशा रहा है, और हम इसमें अवेयरनेस कि क्यों ड्रग बहुत ही गंदी एक बीमारी है समाज के लिए, ये लोगों तक फैलाना, और साथ में हमारी नार्कोटिक्स में जो डीलर्स हैं, पेडलर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, इनके विरुद्ध कार्रवाई करने की हमने बहुत ही इंटेंसिव एक्शन शुरू किया हुआ है। हमने हॉटस्पॉट, जो शहर में जो हॉटस्पॉट्स है जहाँ पे ड्रग्स कंजम्पशन होती है, वहाँ पे हमने QR कोड बेस्ड पेट्रोलिंग लगाया है। वहाँ पे हम अपनी विजिबिलिटी करते हैं, और हमारी एक्शन बेसिकली दो पे है, एक कंज्यूमर्स और एक पेडलर्स। पेडलर्स के विरुद्ध हमारी बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन रहती है। हमने इस प्रकार के जो क्रिमिनल्स रिकॉर्ड पे के हैं, जो डील करते हैं, उनके स्ट्रिक्ट सर्विलेंस और उनके ऊपर प्रिवेंटिव स्टेप्स, हमारी नार्को इंटेलिजेंस यूनिट, हमारी नार्को मोबाइल्स, हमने नए टाटा सफारी गाड़ी अपने अलग अलग एरिया में सिर्फ एंटी नार्कोटिक्स पेट्रोलिंग के लिए दिया है। हमें लगता है, और बहुत बड़े बड़े कंसाइनमेंट्स हमने इंटरसेप्ट किए, काफ़ी हद तक हमें सफलता ज़रूर मिली है, लेकिन मैं बोलना चाहूँगा कि फिर भी आज ये केस बहुत ही ज्वलंत प्रश्न शहर के लिए है। पुलिस के साथ साथ जो ऑल स्टेक होल्डर्स हैं, उनका सबका सहयोग इसमें बहुत आवश्यक है। बट आई वुड से दैट जो भी इसमें हमें करना चाहिए वो हम करने की प्रयत्न कर रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस इशू को हम इफेक्टिवली हैंडल करें। यंगस्टर्स जो सर इसमें लिप्त हैं, उनके लिए कुछ कड़ी यंगस्टर्स को मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि देखिए, ड्रग एक हेल्थ हज़ार्ड है। किसी जो भी इसमें लिप्त है, वो अपनी ज़िंदगी के साथ खेल रहा है, वो अपनी मेंटल स्टेट के साथ खेल रहा है, वो अपने फैमिली के साथ खेल रहा है, वो समाज के साथ खेल रहा है, और वो देश के साथ खेल रहा है। प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम इट। अगर कोई ऐसा एडिक्ट है, हम डी एडिक्शन सेंटर्स का बहुत बड़े पैमाने पे हेल्प लेते हैं। इनफैक्ट हम NGOs और इनकी फंडिंग के थ्रू भी कुछ लोगों को इसमें वो डी एडिक्शन के लिए के कैंपेन में हम उनको यूज करते हैं। दी आइडिया इज़ कि जो लोग हैं जो कंज्यूम कर रहे हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो गार्जियंस हैं, दे हैव अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। प्लीज स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स, इट इज़ अ मेनेस। एंड जो इस बीमारी में लिप्त हो गया, उसकी फ्यूचर बहुत ही ब्रीफ और बहुत ही डार्क। सर, ये तो रही आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में कुछ बातें। इतने बिजी शेड्यूल में आप अपनी पर्सनल लाइफ कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, इट हैज़ टू गो हैंड इन हैंड। देखिए, जब हम पुलिस में आए हैं, और आई कम बाई चॉइस, ऐसा तो आने की किसी ने बंधन करके हमें इसमें डाला है। वी आर अवेयर कि हमारी ड्यूटी आवर्स क्या होती है। कोई ड्यूटी आवर्स पुलिस में होती नहीं है। वी हैव टू बी 24/7/365, वी हैव टू बी अलर्ट, एंड क्राइम का कोई टाइम नहीं होता, इसलिए पुलिस का भी कोई टाइम नहीं होता। एंड आई मीन, इन माई फैमिली आई वुड से कि एवरीवन इज अवेयर ऑफ दिस लिमिटेशन। बट साथ साथ जो फैमिली कमिटमेंट्स हैं, ज़रूर वो टाइम मैनेजमेंट के साथ करना होता है। एंड आई वुड से दैट आई बीन लकी, द फैमिली हैज़ बीन सपोर्टिव। दे रियलाइज कि जो प्रोफेशनल कमिटमेंट है, वो कोई भी फैमिली कमिटमेंट के ऊपर आता है, और बहुत ऊपर आता है। इसलिए कोई ऐसा कन्फ्लिक्ट होना, या कोई इसमें कोई फैमिली के लोग उसमें दुखी होना या नाराज़ होना, ऐसी कोई बात लकीली हुई नहीं है। एंड आई एम थैंकफुल टू माय फैमिली एज वेल। सर, कोई इतने दिन में, इतने सालों में आपने काम किया हो, तो कुछ ऑफिस में कुछ ऐसी घटना हुई है जिसको आप जब घर वापस आए हो तो आपको, मतलब कुछ फनी इंसिडेंट जो आपको घर आने के बाद भी याद रही और आप हंस पड़े हो? देखिए, ऐसी याद तो ऑफ हैंड नहीं आ रही, लेकिन मैं बताऊं कि हमारा ऑफिस का
दरवाज़ा विजिटर्स के लिए हमेशा खुला है। जब भी मैं ऑफिस में हूँ, हमारे कोई फिक्स विजिटिंग आवर्स नहीं रहते। मैं जब भी ऑफिस में रहता हूँ और काफ़ी समय रहता हूँ ऑफिस में, उस समय कोई भी आता है, मिल के जाता है। अब नंबर ऑफ इश्यूज़, कभी डोमेस्टिक इश्यूज से लेके अलग अलग प्रकार के इश्यूज, प्रॉपर्टी इश्यूज, साइबर क्राइम के इश्यूज, ह्यूमन सेफ्टी सिक्योरिटी के इश्यूज, अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं। एंड बहुत कम टाइम में वी ट्राई एंड रिजॉल्व देम। एवरी डे इज एन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ, आई वुड से। एंड मैं सिर्फ आने के बाद इंट्रोस्पेक्ट करता हूँ, वेयर डिड आई गो रॉन्ग एंड व्हाट नीडेड अ चेंज। कभी कभी कुछ हीट ऑफ द मोमेंट में कोई एक डिसीजन लिया, एंड इफ आई कम बैक होम, होम इज़ अ प्लेस वेयर इट गिव्स यू टाइम टू थिंक एंड इंट्रोस्पेक्ट। मैं आई एम इनटू वॉकिंग एंड जॉगिंग, एंड दैट्स द टाइम जो सबसे क्वालिटी टाइम होता है अपने आप को अंदर एक इंट्रोस्पेक्ट करने का। और बहुत बार उस समय डिसीजंस मैं अमेंड करता हूँ और उसको करेक्ट करके, मॉडिफाई करके, उसमें जो भी बदलाव करना करने की कोशिश करता हूँ। कभी कभी ऑफिस में हीट ऑफ द मोमेंट में या कहीं ग्राउंड पे कुछ एक इम्पल्सिव डिसीजन कभी कभी हो जाता है, विच नीड्स टू बी करेक्टेड, एंड एवरी डिसीजन इज सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन एंड अमेंडमेंट। सो आई वुड से दैट every day is a challenge in itself to try and meet people, redress their grievances, और वापस आके सोचना और आत्म परीक्षण करना कि whether I'm on the right track or not, whether हमारा पैर पूरी तरीके से ज़मीन पे है या नहीं। एक इंट्रोस्पेक्शन का विषय है, ट्राई टू डू दैट। सर वी मूव टू द रैपिड फायर सेक्शन। इसमें 2-3 वर्ड में ही अपन को आंसर मिलेंगे। सर ड्यूटी आज के बाद का फेवरेट हैंगआउट स्पॉट? घर का ये वॉकिंग ट्रैक। ओके। नागपुर के यूथ के बारे में आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? देयर कॉन्फिडेंस इन द पुलिस। ओके। अगर यूथ को डिस्क्राइब करें, यूथ को और अपनी जर्नी को अगर आप 3 शब्दों में अगर डिस्क्राइब करें तो वो क्या रहेगा आपके पूरे कार्यकाल? Enthusiastic, lot of initiative they have, and they want to partner with the police. ओके। नागपुर की सबसे फेवरेट पसंदीदा क्यूजीन कौन सी है जो आप कभी मिस नहीं करना चाहें? साउथ। नागपुर के लिए आपका लिया हुआ कौन सा डिसीजन जो आपका फेवरेट? बहुत मुश्किल है, मैं जैसा बताया, एवरी डे इज अ चैलेंज इन इटसेल्फ। एवरी डे एक्चुअली लीड इज अ चैलेंज, एंड यू हैव, आई डोंट थिंक आप अपनी अगले दिन प्लान कर सकते कि क्या है। एवरी वीक में नई चैलेंज होती है, और एवरी वीक में एवरी मोमेंट अपने को डिसीजन लेना होता है। आपके टेन्योर में आपने नागपुर में क्या चेंज देखा, सबसे बड़ा चेंज? मुझे लगता है कि शायद पुलिस की एक कनेक्ट जनता के साथ हुई है, और पब्लिक की विश्वास पुलिस विभाग पे पड़ी। सर कौन सा ऐसा क्रिटिसिज्म है जिसे सुन के आपको खुद के ऊपर प्राउड महसूस हुआ, गर्व महसूस हुआ? गंगा जमुना का जो जो माइनर्स और चिल्ड्रन चाइल्ड ट्रैफिकिंग और प्रोस्टिट्यूशन जो चलता था, उसको हमने बंद करने का प्रयत्न किया, काफ़ी हद तक बंद किया। उसके बारे में क्रिटिसिज्म एक पर्टिकुलर सेक्शन से हुआ, बट आई एम प्राउड। और सिर्फ आपकी कौन सी ऐसी एक फेवरेट मूवी? सिंघम आपकी ऑब्वियसली। So thank you sir, thank you so much. It was a very enlightening conversation जो मुझे सालों तक याद रहेगी। और मैं तो चाहूँगा कि सर आप हमेशा के लिए नागपुर में रहें, पर प्रोफेशनल कुछ ऐसे होते हैं चीज़ें जिससे हम एक जगह पे सीमित नहीं रह सकते। So thank you so much for giving us your time. Thank you so much to you and all your team, जिन्होंने आज इतने मेहनत करके ये शूट किया। थैंक यू वेरी मच। एंड जो हमारा कनेक्ट है, इसको आप लीड किए थे ड्यूरिंग इन आवर इंटरेक्शन, इन आवर एसोसिएशन विद द सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। Thank you sir, thank you so much.